Good morning, students. This is Sasikant sir, welcoming you again to the web classes. We are at the elements of account. The name of chapter is Accounting and its Terminologies for the 11th Standard English Medium, lecture number 1. This is the second part of lecture number 1. In the previous session, we were at the lecture number 1, but few things was missed out. Let's take a recap of what we had learned in the next lecture, previous lecture. So introduction part we had completed, and we had also completed the barter system and evolution of human. That was explained just to explain you the barter system. In the barter system, we were exchanging goods and services against goods and services. We had also seen the evolution of money from the animal money to metal money, and from paper money, and nowadays electronic money we are seeing. Okay, so definition of accounting we had also completed as per the AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. The definition of accounting is the art of systematic recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part of at least of financial character. So in this definition, what are the important things? The important points were recording, classifying, classifying and summarizing. It means in accounting what we are doing, we are just recording the past transaction, and that transaction are classified in a simplified manner, and we are summarizing. What does it mean by summarizing? We are summarizing means we are just analyzing the result of it. Means at the end of the month or at the end of the year, we are just finding out whether there is a profit or not. So this definition was given by the American Institute of Certified Public Accountants, and the same definition was completed in the previous lecture. So this point was left out, and the point is characteristics of accounting. So what are the characteristics of accounting? For the first, the financial कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज़ें लिख सकते हैं जिसको फाइनेंशियली मेज़र कर सकते हैं, है ना। जिसे आप फाइनेंशियली मेज़र कर पाओ, आप वही चीज़ें लिख पाओगे, बाकी चीज़ें नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मेन प्रमोटर हैं वो है मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, जो कि डिवाइड होकर के कुछ प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी के पास गई और कुछ प्रॉपर्टी अनिल अंबानी के पास में गई। सो मुकेश अंबानी इज़ द की पर्सन फॉर द रिलायंस। अगर उसकी हेल्थ डिटोरिएट होती है या फिर उसे कोई भी इश्यू होता है, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कंपनी पे आने वाला है, लेकिन उस इफ़ेक्ट को आप अपने बैलेंस शीट में या फिर आप अपने अकाउंटिंग में कहीं भी नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? आप उसे कहीं भी नहीं लिख पाओगे कि हमारा भाई मुकेश अंबानी बीमार हो गया या फिर मर गया, या कुछ भी नहीं लिख सकते। सिमिलरली, अगर आपके फादर के बिजनेस में कोई ऐसा एफिशिएंट मैनेजर है जिसके वजह से पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, हाँ, ऐसा समझो कि जिसके वजह से पूरा बिजनेस चलता है, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं रहा तो बिजनेस पे बहुत गहरा असर होगा, ठीक है, और मान लो कि वो छोड़ करके चला जाता है, तो आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी, आपके बिज़नेस का सेल्स डाउन हो जाएगा। हो सकता है राइवल कॉम्पिटिटर्स को आपको बेनिफिट मिल जाए, बट आप उसे अपने बुक्स में कहीं नहीं लिख सकते। वाई? बिकॉज दैट इज़ नॉट हैविंग दैट इवेंट डजेंट हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर। ओके, सो इन अकाउंटिंग वी कैन record only those transactions which are in financially, which can be measured financially. Okay, so that is the first characteristics of accounting. Second, money as a medium of exchange. So in accounting, whatever we are writing, that is written in the money form, that is written in the money form. Except money, we are not writing anything. Suppose just like you had purchased a furniture, so you must have paid some money to the vendor। और अगर आप घर से भी फर्नीचर लेके आते हो तो उसकी कोई वैल्यू होगी, जो वैल्यू है आप वो वैल्यू ही लिख सकते हो, बाकी फीलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? मनी फॉर्म में, ठीक है। मनी फॉर्म के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अकाउंटिंग लिखने के लिए। सो दैट इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द थर्ड वन इज
classification and analysis of transaction. See, classification and analysis of transaction क्या कहना चाहता है ये? सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि पूरे दिन में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें से हम ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि सपोज जैसे कि परचेज़ किया तो परचेज़ के ट्रांजैक्शन अलग, सेल्स है तो सेल्स के ट्रांजैक्शन अलग, सेल्स के अंदर भी दो पार्ट है, कैश ट्रांजैक्शन तो कैश ट्रांजैक्शन अलग, क्रेडिट है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग. इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हम उसे क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शन में. देन क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमारा होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. हम उस ट्रांजैक्शन को समझते हैं और उसके रिस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं. देन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. वाई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे बिजनेस को कभी ना कभी काम आती है. जैसे कि मान लो कि कोई डेटर है, कोई डेटर मतलब कोई कस्टमर है, कोई कस्टमर का पूरा अगर रिकॉर्ड आपने रखा होगा, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर स्टार्टिंग से लेकर के आपने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. जब कभी भी अचानक से वो आकर के कहे कि सेठ जी बताइए मेरा कितना बाकी है, तो हम कह सकते हैं कि कितना बाकी है. कहाँ से? वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी रिकॉर्ड हमने रखा है वहाँ से हम कह सकते हैं. अब इकोनॉमिक डिसीजन. व्हाट इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या हुआ? सो इकोनॉमिक डिसीजन मतलब फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेने हैं आप वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ले सकते हो. मान लो कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम एक न्यू ब्रांच ओपन करें, हाँ, हमारे बिजनेस का एक नया ब्रांच ओपन अगर करना चाहते हो तो वो डिसीजन कैसा हुआ? इकोनॉमिक डिसीजन. कौन से एरिया में ओपन करना है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कैसे पता चलेगा. तो हमने पिछले साल या फिर पिछले कई सालों में जो भी कामकाज किए हैं वो हमारे अकाउंटिंग के बुक में लिखा होगा. उस बुक से, उस रिकॉर्ड से आपको पता चलेगा कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डिसीजन. टू मेक द इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन इन द बिजनेस अकाउंटिंग इज नेसेसरी. Now historical information. Why? What is historical information? Historical information means हम अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी है, हाँ, the events and the transaction which already done, which already happened. Only that transaction can be recorded. Future transaction cannot be recorded in the business. Okay. So what I'm trying to tell you is the entire accounting is a historical. हाँ, जो चीज़ें हो चुकी है हम सिर्फ वही रिकॉर्ड कर पाते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. मैं वन बाय वन जस्ट रीड द हेडलाइन ऑफ इट. सो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, money as a medium of action, classification and analysis of transaction, interpretation of transaction, quantitative information, economic decision and historical information. So hopefully you have got all the 7 points of characteristics. Let's move to the next question. अच्छा, इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखने हैं. ना अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल मतलब अकाउंटिंग में हम करते क्या है, कैसे होता है. सो अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें करना होता है रिकॉर्ड करने के बाद हम उस क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करने के बाद एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन मतलब डिसीजन लिए जाते हैं. देन इंटरप्रेट किया जाता है, उसे समझा जाता है जो भी कंक्लूजन है. उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेडी किए जाते हैं और वापस से ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है. फिर वापस से नया साल स्टार्ट होता है. फिर से रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग साइकिल. होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट and almost we had completed this lecture. So I think we need to take a recap. Just take a recap of the lecture again. Come to the characteristics. The first characteristic is financial characteristic, money as a medium of exchange, classification and analysis of transaction, interpretation of transaction, quantitative information, economic decision, historical information. Okay, these are the characteristics of accounting and this is the accounting cycle. Okay, so आज के हमारे अगर इस लेक्चर से बनने वाले क्वेश्चन अगर बोलें तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है. सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम. तो क्या है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के बाद आता है लाइक हाँ, व्हाट इज अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज पर AICPA.
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो क्या दिया था डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपको लिखना है। इसके बाद में है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन बनेगा और लास्ट क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन अकाउंटिंग साइकिल। सो होपफुली you have enjoyed the lecture and stay home and stay safe. Thank you for the listening. Stay home and stay safe.